Hello students, this is Archana Chauhan. वेलकम टू माय चैनल अर्चना चौहान GMT। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 ऑफ क्लास 8 क्यूब एंड क्यूब रूट्स। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट थिंग इज हार्डी रामा अनुजन नंबर। पहले हमें जानना है कि हार्डी रामा अनुजन नंबर क्या होते हैं। द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट एज द सम ऑफ टू क्यूब्स in different ways is said to be a Hardy Rama Anujan number. For example, 1729 can be represented like 10728 plus 1. As we know, 1728 is cube of 12 and cube of 1 is 1. So if we add cube of 12 and cube of 1, we will get 1729. ठीक है, तो इसी तरीके से 1729 को आप दूसरे तरीके से भी राइट कर सकते हैं। इट कैन बी रिटन लाइक क्यूब ऑफ 10 एंड 9 क्यूब ऑफ 9। Sum of these two numbers is also 1729 and 1729 is the smallest Hardy Rama Anujan number. There can be infinite such type of numbers. For example, 4104, it can be represented like cube of 2 plus cube of 16, or it can be represented by cube of 9 plus cube of 15. And in the same manner we have another number 13,832. It can be represented as cube of 18 plus cube of 20, or we can represent it by a cube of 2 and cube of 24, etc. हम नेचुरल नंबर्स को डिस्कस करने से पहले हमें देखना होगा कि क्यूब को लिखा कैसे जाता है। वी कैन राइट a raised to power 3 एंड इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं मल्टीप्लाई a 3 टाइम्स। ठीक है, सो क्यूब ऑफ a इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a। नाउ चेक क्यूब्स ऑफ सम नेचुरल नंबर्स। As we know, if 1 is a natural number, so cube of 1 can be written is equals to 1. 1 multiplied by 1 multiplied by 1 equals to 1. In the same manner, cube of 2. 2 multiplied by 2 multiplied by 2, it will become 8. Now 3. Cube of 3 equals to 27. And cube of 4 equals to 64, and cube of 5 equals to 125, and cube of 6 equals to 216, and cube of 7 is equivalent to 343. In the same manner, we can find cube of 8 is 512, and cube of 9 is equivalent to 729, and cube of 10 is equals to 1000. In the same manner, we can find up to 20 or any other natural numbers. So let's find cube of 11 is equals to 1331, and cube of 12 is 1728, and cube of 13 is equivalent to 2197, and equivalent of cube of 14 is equivalent to 2744. Cube of 15 equals to 3375, and cube of 16 is equivalent to 4096, and cube of 17 is 4913, and cube of 18 is 5832, and cube of 19 is 6859, and cube of 20 is 8000. Okay, so there are only 10 perfect cubes between 1 and 1000. 1 और 10 के जो 1 and 1000 के बीच में how many numbers we have perfect cube? Only 10 numbers. You can check from here from 1 to 10. 1 से लेकर 10 के बीच में केवल 10 perfect cubes होते हैं. And one more thing to notice here, when we are
finding the cube of odd numbers, we are getting odd digit. You can check from here. जब हमने odd numbers का cube किया, 1 is odd, we got odd number, and 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. These all are odd numbers. तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं जितने भी odd numbers होते हैं, अगर हम उनका क्यूब फाइंड करते हैं तो क्यूब भी एक odd नंबर ही होता है. इसी तरह से जब हम किसी इवन नंबर का क्यूब फाइंड करते हैं, इट्स ऑल्सो अ इवन नंबर. नाउ चेक फॉर वंस डिजिट ऑफ द क्यूब्स. One digit of the cubes of a number having a particular number at the end will always remain same. Let's check for it. अगर मैं 1, मेरे पास यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर क्या है, 1 है, और अगर मैं 1 का क्यूब करूं देन आई गेट 1. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई find cube of 11, then I will find it is 1331. So we can check from here. यूनिट्स प्लेस डिजिट इज 1. ठीक है. तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि अगर किसी भी नंबर की जो यूनिट प्लेस डिजिट है वो क्या है, 1 है, तो जब हम उसका क्यूब करेंगे, क्यूब करने के बाद जो आंसर आएगा उसकी भी जो यूनिट प्लेस डिजिट होगी वो भी 1 होगी. वी कैन टेक अनदर एग्जाम्पल. इफ आई डू क्यूब ऑफ 21, so I'll get 9261. So again we can check from here. Unit place digit of cube of 21 is 9261. It is 1. ठीक है. तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं. नाउ फाइंड फॉर 2. क्यूब ऑफ 2 वी हैव 8. इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा कोई भी नंबर जिसका यूनिट प्लेस डिजिट 2 हो, जब भी हम उस नंबर का क्यूब करेंगे उसके यूनिट प्लेस डिजिट में 8 आएगा. फॉर एग्जाम्पल, क्यूब ऑफ 12, इट इज इक्विवेलेंट टू 1728, एंड क्यूब ऑफ 23 और 32 क्यूब ऑफ 32, इट इज 32768. Now check. यूनिट प्लेस डिजिट इज 2. जब हमने इसका क्यूब किया तो हमें यहाँ क्यूब में जो यूनिट प्लेस डिजिट मिली है वो कितना है, 8 है. ऐसे ही 32 में जो यूनिट प्लेस डिजिट थी वो क्या थी, 2. जब हमने इस नंबर का क्यूब फाइंड किया तो हमें यूनिट प्लेस डिजिट में क्या मिला, 8 मिला. इन द सेम मैनर वी कैन फाइंड फॉर 3. अगर यूनिट प्लेस डिजिट 3 हो तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27. एंड 27 में जो यूनिट प्लेस डिजिट है वो कितनी है, 7. ठीक है. सो लेट्स चेक बाय एन एग्जाम्पल. इफ आई फाइंड द क्यूब ऑफ 13, it is 2197, and cube of 53, it is 14887. ठीक है. तो यहाँ से आप देख सकते हो अगर हमने 3 का क्यूब किया तो वो कितना आया, 27, और 27 में जो यूनिट प्लेस डिजिट थी वो कितना था, 7 था. ऐसे ही 13 में जो यूनिट प्लेस डिजिट है वो कितनी है, 3 है. अब इसका जब आप क्यूब करेंगे इस नंबर का तो आपको यूनिट प्लेस डिजिट क्या मिलेगी, 7 मिलेगी. इसी तरीके से 53 में चेक करिए, यूनिट प्लेस डिजिट इज 3. जब हमने इसको क्यूब निकाला, इसका क्यूब फाइंड किया, देन वी गॉट 7. ठीक है. नाउ चेक फॉर अनदर नंबर्स. अब दूसरे नंबर्स के लिए हमें चेक करना है. सो चेक फॉर 4. इफ वी डू cube of 4, then we will get 64. So unit place digit in 64 is 4 here. So let's check with an example. If I find cube of 24, I'll get 13824, and cube of 74
equals to 405224. So you can easily find by this. आप यूनिट प्लेस डिजिट चेक करिए, उसका क्यूब करिए एंड उस क्यूब को करने के बाद आप जो भी यूनिट प्लेस डिजिट फाइंड करते हैं तो कितना भी बड़े से बड़ा नंबर हो हमारे पास उसका हम यूनिट प्लेस डिजिट बता सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अब मैं आगे आपको बताती हूँ कि कैसे बाकी का हम कर सकते हैं। इट इज 5 का क्यूब कितना होता है 25 में यूनिट प्लेस डिजिट इज 5। तो कोई भी आप नंबर ले लें जिसका यूनिट प्लेस डिजिट 5 होगा, उसका जब हम क्यूब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 5 ही मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही क्यूब ऑफ 6, सो इट इज 36। सो यूनिट प्लेस डिजिट क्या बनेगी 6 बनेगी। कोई ऐसा नंबर जिसका क्यूब हमें करना हो, लाइक इफ आई हैव 26 वी नीड टू फाइंड क्यूब ऑफ 26। तो अगर मुझे बताना हो कि इसका यूनिट प्लेस डिजिट कितना होगा तो क्या होएगा 6 का क्यूब आप करिए, क्या मिलना है 6 मिलना है। सो आई विल गेट 17576। नाउ चेक फॉर 7 का क्यूब कितना होएगा 343। इसमें आप चेक करिए यूनिट प्लेस ऑफ क्यूब इट इज 3। तो जब भी ऐसा कोई नंबर जिसमें यूनिट प्लेस डिजिट 7 हो तो उसका क्यूब करने पर उसकी भी यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगी 3 ही होगी। टेक एन एग्जाम्पल, क्यूब ऑफ 17 इक्विवेलेंट टू 4913 और क्यूब ऑफ 37 equivalent to 50653. So you can check from here. Unit place digit is 7. जिस नंबर का हमें क्यूब फाइंड करना है उसकी यूनिट प्लेस डिजिट कितना है 7 है, और जब हमने इसका क्यूब किया टोटल नंबर का 17 का तब हमें आंसर में क्या मिला यूनिट प्लेस डिजिट भी 3 मिला। इन द सेम मैनर इफ आई फाइंड द क्यूब ऑफ 37 यू कैन चेक फ्रॉम हियर unit place digit is 7. That's why in answer or in cube of 37 we will get at unit place digit is 3. Now check for 8. Cube of 8 is equivalent to 512, and now check ones place digit, it is 2. So if I find any number who has which has unit place digit as 8, then its cube unit place digit also be a 2. ठीक है, so check for cube of 18 I'll get 5832. So unit place digit is 2 and here unit place digit in the number that is 8. Now find for 9. Cube of 9 equivalents to 729 and check from here unit place digit is 9. So एक ऐसा नंबर जिसका यूनिट प्लेस डिजिट 9 हो, जब हम उसका क्यूब फाइंड करेंगे तो उसके क्यूब में भी जो यूनिट प्लेस डिजिट होगी वो भी क्या होगी एक 9 नंबर ही होगी। So if I find the cube of 19 then I'll get 6859. So you can check from here it is 9. Okay, if I have a number 10, so cube of 10 is 1000. So if I find cube of any number which has 0 as its unit place digit, then in its cube unit place digit also be a 0. Now some interesting patterns. Number 1, adding consecutive odd numbers. Consecutive odd numbers का मतलब है लगातार आने वाले odd numbers. ठीक है, तो देखते हैं इसमें कैसे होता है। If I find cube of 1, I'll get 1 here and equivalent to 1. If I find cube of 2, it is equivalent to 8 and will be the sum of 2 consecutive odd numbers, that is 3 and 5. In the same manner if I find the cube of 3 it is 27 and it will be next of 3 odd numbers. 3 के बाद कौन से odd numbers आएंगे? It will be 7 plus 9 plus 11. ठीक है, 7 plus 9 plus 11. Now find cube of 4. It is 64. So what comes after 11? It is 13 plus 15 plus 17 plus
19 and cube of 5 is 125. So after 19 we have 21 plus 23 plus 25 plus 27 and plus 29. So in the same manner we can find cube of 6 as the sum of consecutive odd numbers. It is cube of 6 equivalent to 216 and it is sum of consecutive odd numbers, that is 31, 33, 35, 37, 39 and 41. Now in the same manner we will find cube of 7, it is 343 and these are the consecutive odd numbers जिनका ये sum है. ठीक है, आप रीचेक भी कर सकते हैं आंसर, इन सभी को ऐड कीजिएगा, देन यू विल फाइंड 343. एंड इन द सेम मैनर वी कैन फाइंड क्यूब ऑफ 8, क्यूब ऑफ 9, एनी नंबर. ठीक है, तो समझ क्या आया? समझ में ये आना चाहिए यहाँ से कि जैसे ही आप ऑड नंबर्स का सम कर रहे हैं, यू नीड टू काउंट हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर देयर, 6 ऑड नंबर्स. ठीक है, तो 6 ऑड नंबर्स हमारे पास हैं, तो उनका अगर हम क्यूब करते हैं तो वो 216 होगा. ठीक है, तो इट डिपेंड्स कि यहाँ पर आपको कितने कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड नंबर्स दे रखे हैं, जितने ऑड नंबर्स आपको दिए होंगे, बट कंडीशन इज दैट इट शुड बी कॉन्स्टिट्यूटिव. ठीक है, आप यहां से चेक करिए, दीज आर 7, यहाँ 7 कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, दैट्स वाई इट इज क्यूब ऑफ 7. एंड वी हैव हियर 8 consecutive odd numbers, that's why it's a cube of 8. And we have here 9 consecutive odd numbers, that's why it is cube of 9. Now cube and their prime factors. किसी भी नंबर का ये पता करना कि वो किस नंबर का क्यूब है, वो हम किसके थ्रू करते हैं? थ्रू प्राइम फैक्टर्स के थ्रू. ठीक है, अब जैसे मुझे यहाँ पर पता करना है कि 13824 किस नंबर का क्यूब होगा. ठीक है, तो इसके लिए पहले मुझे क्या करने होंगे? प्राइम फैक्टर्स. प्राइम फैक्टर्स मीन्स हम एक जो गिवन नंबर होता है उसको प्राइम नंबर्स की हेल्प से डिवाइड करते हैं. एज वी नो 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर. ठीक है, 2 हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है. और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1 ओनली. ठीक है, तो 2 से आप डिवाइड करके इसको इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं, डिविजिबिलिटी करते जाते हैं. और कब तक करना होता है? जब तक कि 1 ना आ जाए. ठीक है, सो आफ्टर दैट यू कैन राइट ऑल द फैक्टर्स हियर. जितने भी प्राइम फैक्टर्स हमें मिले हैं उनको हम यहाँ लिख लेंगे. एंड आफ्टर दैट क्योंकि हम क्यूब फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, क्यूब फाइंड कर रहे हैं, इसलिए वी विल मेक पेयर्स ऑफ 3. आप यहाँ से 3 के पेयर्स को बनाएंगे. ठीक है, तो इट विल 2 क्यूब एंड 2 क्यूब एंड 3 क्यूब. ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिला? ये सब 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 3. ठीक है, अब एक फॉर्मूला हमने एक्सपोनेंट एंड पावर में रीड किया था. इट वाज a रेज टू पावर m एंड मल्टीप्लाई बाय b रेज टू पावर m. इट गिव्स अस a b की होल पावर m. ठीक है, इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर देंगे. सो वी विल गेट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का होल क्यूब. ठीक है, नाउ मल्टीप्लाइड इट, 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24. So it will become cube of 24. So 13824 is the cube of 24. So in this manner we can find cube of a number through prime factors. To find smallest multiple that is a perfect cube. ठीक है, किसी भी नंबर का जो कि एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर होगा जिसकी हेल्प जिससे हम मल्टीप्लाई करें और वो नंबर क्या हो? एक परफेक्ट क्यूब बन जाए. ठीक है, तो जो भी गिवन नंबर होगा उसके पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद जितने भी फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं, उनको एक साथ लिख लेंगे एंड चेक करेंगे किन नंबर्स का 3 के ग्रुप्स में वो आ रहे हैं. ठीक है, 3 के ग्रुप्स में केवल यहाँ एक ही नंबर आ रहा है. ठीक है, 2 एंड 11 आर नॉट इन द ग्रुप ऑफ 3. जो 2 और 11 है वो 3 के ग्रुप में नहीं है. सो 11 8 8 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब.
ठीक है। सो टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब वी नीड टू मल्टीप्लाई इट विथ 2 एंड 11 मल्टीप्लाई बाय 11, ठीक है। 2 टाइम्स आप 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 1 टाइम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो वी कैन गेट लाइक दिस 2 मल्टीप्लाई बाय 11 एंड यू विल डू इन बोथ द साइड्स, ठीक है। किसी एक साइड में नहीं करना है। LHS एज वेल एज इन RHS, सो इट विल 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 multiply by 3 multiply by 3, 11 multiply by 11 multiply by 11. So now you can check from here all the digits in group of 3, ठीक है। 3 के ग्रुप में अब हमारे पास है, सो इट विल बी अ परफेक्ट क्यूब। पर ध्यान ये रखना है जब आप स्मॉलेस्ट मल्टीपल से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको LHS एंड RHS दोनों साइड्स में मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। सो इन सबको मल्टीप्लीकेशन करने पर हमें मिल जाएगा 2, 8, 7, 4, 9, 6 and it will equivalent to cube of 2, cube of 3 and cube of 11. As we know, if base is different but exponent is same, in that case we multiply all the bases and write exponent at least once, ठीक है। Now on multiplication these all we will get 2 3 just 6 11, 6 times 11 it is 66, cube of 66, so it is a perfect cube, ठीक है। तो आई होप ये बात समझ आ गई होगी कि अगर कोई नंबर हमें गिवन है और ये चेक करना है कि वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, तो आप उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टर्स को यहाँ राइट डाउन कर लेंगे एंड 3 के ग्रुप्स क्रिएट करेंगे। अगर कोई नंबर रह जाता है जो कि ग्रुप का 3 का ग्रुप नहीं बन रहा है तो उसको आप उतने ही नंबर जितने रह जाते हैं उतने से दोनों तरफ में मल्टीप्लाई करके परफेक्ट क्यूब में चेंज कर सकते हैं। Now we will learn how to find cube roots. Finding cube root is the inverse operation of finding the cube. Means जैसे हम cube निकालते थे उसका just opposite operation अगर हम perform करते हैं then we can find the cube roots. Its symbol is this. You will write radical and in here you can write 3. It means we have to make 3 groups of prime factors, ठीक है। तो जैसे हमें पता है कि अगर 3 का क्यूब हम करते हैं तो वो कितना आता है 27 आता है। और अभी मैंने क्या बताया कि जो क्यूब रूट है वो अपोजिट ऑपरेशन होता है, इनवर्स ऑपरेशन होता है क्यूब का, ठीक है। तो इस केस में जो क्यूब रूट होगा 27 का कितना होगा 3, और इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से क्यूब रूट ऑफ 27 इक्विवेलेंट टू 3। There are 2 methods of finding a cube root. Number 1 is prime factorization method. To find cube root by a prime factorization method, first step will be you have to find all the prime factors of the given number and write them accordingly and make the pair of 3 possible, ठीक है। जो भी हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हैं उनमें अगर 3 के पेयर्स बन रहे होंगे तो आप उनको एक साथ लिख लेंगे। देन रिप्लेस दैम एज अ सिंगल डिजिट, ठीक है। एंड आफ्टर दैट मल्टीप्लाई दी सिंगल डिजिट्स टू फाइंड द क्यूब रूट। सो वी नीड टू फाइंड क्यूब रूट ऑफ 15625. सो आई कैन राइट इट लाइक this, and this is the pair of 3 digits and this is also a pair of 3 digits, and after that you can write as a single digit. Now its multiplication, it will be a cube root of 15625. Now second method of finding a cube root is estimation method. This method is based on the estimation. Let's take an example. It is 15625. It is a number that makes the group of 3 digits starting from the right. पहला काम क्या करना है, राइट हैंड साइड से आप 3 डिजिट्स का पेयरिंग करेंगे, ठीक है। एंड जो भी रेस्ट ऑफ डिजिट्स हैं उनको आप
एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दो ग्रुप्स हो गए हमारे पास, एक फर्स्ट ग्रुप ये बना एंड सेकेंड ग्रुप 15 ये बना। ठीक है, अब आपको फर्स्ट ग्रुप को चेक करना है। ठीक है, जो फर्स्ट ग्रुप है इट विल टेल अस द यूनिट्स डिजिट ऑफ द क्यूब रूट, ये हमें क्यूब रूट की जो यूनिट प्लेस डिजिट है वो बताएगा। एज द नंबर इज एंडिंग विथ 5, जैसे कि आप देख सकते हैं इसका जो नंबर है वो 5 पर एंड हो रहा है एंड वी नो दैट 5 कम्स एट द यूनिट प्लेस ऑफ अ नंबर ओनली व्हेन इट्स क्यूब रूट एंड्स इन 5, सो द यूनिट प्लेस इज 5। ठीक है, 6 to 5 से हमें क्या मिला कि जो इसकी यूनिट प्लेस डिजिट है अगर उसका हम क्यूब करते हैं, 5 का क्यूब करते हैं तो कितना मिलेगा, 5 5 जा 25, 5 जा 125 एंड इट्स यूनिट प्लेस डिजिट इज 5, सो इट्स यूनिट नंबर ऑफ क्यूब ऑफ द यूनिट प्लेस डिजिट विल बी 5। ठीक है, नाउ चेक आउट अबाउट 15। अब आपको 15 को चेक करना है। 15 के लिए आप चेक करेंगे कि ये किस किस के क्यूब रूट के बीच में आता है। सो यू कैन चेक टू क्यूब ऑफ 2 इट इज 8 एंड क्यूब ऑफ 4 4 4 जा 16 4 जा 64। ठीक है, now before that you can check for 3 also, so 3 cube of 3 3 3 ja 9 3 ja 27, so 15 8 and 27 के बीच में आता है। ठीक है, now the number which is smaller that is 2। ठीक है, 2 and 3 के बीच में जो स्मॉलर नंबर है वो कौन सा है, 2 है। सो द वंस प्लेस ऑफ 2 इज 2 itself। ठीक है, जो यहां से डिजिट हमें मिलेगी वो 2 मिलेगा। ठीक है, सो टेक 2 एज टेंस प्लेस ऑफ द क्यूब रूट ऑफ 15 6 2 5। ठीक है, 1 5 6 2 5 का जो टेंस प्लेस डिजिट होएगा वो 2 हो जाएगा।